السلام علیکم حاضرین، آپ کا میزبان افتخار سیماب خوبدار نیوز کے ساتھ حاضر ہے۔ حاضرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کووڈ-19 کے حوالے سے نہ صرف پوری دنیا بلکہ پاکستان میں بھی بہت زیادہ افیکٹ ہوا ہے۔ پاکستانی عوام اس سے بہت متاثر ہوئی اور اسپیشلی اس کا جو بہت زیادہ اثرات جو نظر آ رہے ہیں وہ مزدوروں کے اوپر نظر آ رہے ہیں۔ وہ بیچارے مزدور جو دہاڑی لگاتے تھے، شام کو کھاتے تھے، ان کا کیا بنے گا اور ان کا کیا ہوگا؟ آنے والا ٹائم اب حکومت کس سائڈ پہ لے کے جا رہی ہے؟ کیا ہم SOPs پہ عمل کر کے بچ سکتے ہیں یا نہیں؟ آج ہمارا اس حوالے سے پروگرام ہوگا، جس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں لیبر ونگ کے ایڈیشنل جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف عزت خان لالا۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سیکرٹری جنرل آل پاکستان سپورٹس بورڈ امپلائیز یونین کے CBA کے انجم شہزاد گجر صاحب۔ ان کے ساتھ ہمارے انتہائی سینئر صحافی نظیم گلزار کھوکھر صاحب موجود ہیں۔ آج ہم ان کا پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ عزت خان لالا، کووڈ-19 کرونا، اس حوالے سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں یا دنیا میں جو ہے یا نہیں، کیونکہ عوام میں ابھی تک اتنی اموات ہونے کے باوجود یہ جو شوشہ چھوڑا جا رہا ہے کہ ہے یا نہیں ہے، اس حوالے سے آپ بتائیے گا کہ کیا کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیمہ صاحب، آپ کا انتہائی مشکور اور شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت اہم حملے پر پوچھے اور ہم مزدوروں سے اور ہم مزدوروں کی نمائندگی بھی کرتے۔ حقیقت یہ ہے، میرا اپنا ذاتی خواہش تھا، آپ نے کہا کہ ہے بھی کرنے، یہی سوال ہے۔ سب سے پہلا میں یہ کہوں گا، کیونکہ ہر وہ بندہ جو اپنا اوپر وہ لاگو نہیں کرتے تو دوسرا کے ساتھ بات نہیں کر سکتے۔ میں رمضان کے مہینہ ہے اور باخدا میں سچ بات کرتا ہوں کہ میں نے ایک چیز پہ جو گورنمنٹ بتاتے اس پر عمل کرتا ہوں۔ میں چھوٹے بچوں کو بھی بتاتا ہوں، باہر پولیس کھڑا ہے، فٹافٹ اس کو ڈالو۔ گھر کے اندر بھی جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم کر رہے، گورنمنٹ جو بتا رہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دلوں میں یہی میڈیا کے اوپر عالم لوگ آتے۔ اب بدقسمتی سے ہمارا پاکستان میں سیاستدانوں نے اور عالموں نے دین کو اور سیاست کو اتنا بدنام کیا کہ آپ کو سچ بات ڈھونڈنا پڑتے۔ اب کئی مولوی یہ کہہ رہے کہ بھائی یہ تو ہے ہی نہیں ہے، یہ تو گورنمنٹ کا ایک ڈرامہ ہے۔ کئی ہمارے پاکستان یہ بتائیں نا، اگر یہ ہے تو یہ کون سا کرونا ہے جو شام کو 6 بجے کے بعد آ جاتا ہے؟ میں اسی بات پر آ جاتا ہوں۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتا، اسلام آباد کے حوالے سے میں بات کروں گا اور PTI کی اگر میرا آواز کوئی ذمہ دار لوگ سن رہے، خاص عمران خان صاحب، آپ اسلام آباد کے شہری بھی ہے، پاکستان کے وزیر اعظم بھی ہے، اور آپ نے جو 5 سیٹ جیتا ہے، جو پاکستان کے تاریخ میں پہلی بار ایک وزیر اعظم نے 5، اس میں اسلام آباد سر فہرست تھا۔ اور ابھی 3 ہوئے، میں نے آپ کے اسلام آباد کا 20 لاکھ کی آبادی ہے۔ یہاں پہ آپ کے وہ لوگ کدھر ہے جو آپس میں گلدستے تقسیم کر رہے اور عہدیداری تقسیم کر رہے، اور آپ کے جو ہے نا وہ ٹیگر پوسٹ تھا۔ معذرت کے ساتھ یہ تو بتائیے گا، یہ تو صرف حکومتیں چینج ہو رہی ہیں نا، ایک کو اتار کے دوسری جگہ، وہاں سے اتارا دوسری جگہ لے آیا، یہ تو کوئی اس طرح کی یہ حکومت فرسٹ ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں۔ میں سر اسی پر آ رہا ہوں۔ دیکھو رمضان کا مہینہ ہے، دکانداروں نے اب وہ کہتے 6 بجے بند کرو، ڈپٹی کمشنر صاحب نے فوج کو اور پولیس کو، اور یاد رکھو ہمارے توہین ہو رہے یار، ہمارا ساتھ یہ مذاق، ایک تو ہم مر رہے، دوسرا طرف جناب ہمیں بے عزت کر رہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ اپنے ٹائیگروں کو نکالے، پولیس کو نکالے، لوگوں نے اس میں کاروبار بنا دیا۔ خدا یہاں پہ میں سوال، کل سارے الیکشن ہے، اب 1 منٹ آپ مجھے دے، کل جب یہ کراچی میں الیکشن کرے گا، کیا اگر مسجد کو بند کر سکتے، یعنی میرا تقریب بند ہے نا 6 فٹ کے پارلے پر، تو کیا یہ اسمبلی میں آنا ضروری ہے؟ یہ الیکشن 1 مہینہ بعد نہیں ہو سکتے؟ ڈسکے میں جانا۔ ایک چیز میری وہاں پہ آگئی کہ آپ ٹائیگر یونین کا جو کر رہے ہیں، ٹائیگر یونین کے اوپر تو بہت سارے آبجیکشن آ رہے ہیں، آئے دن پتہ چل رہا ہے وہ کہیں کرپشن کر رہے ہیں، کہیں جا کے اپنی مرضی سے کوئی دکانیں بند کروا رہے ہیں، کچھ کھلوا رہے ہیں۔ یہ ٹائیگر تو آپ اس حوالے میں کیا کہیں گے؟ سر میں الفن کہہ رہا ہوں، اگر میرا آواز ہے، میں اتفاق سے ایک دوست کے ساتھ ٹانگا ہوٹل میں بیٹھا تھا راول ڈیم میں، اور ایک اسسٹنٹ کمشنر صاحب لائٹ لگائے ہوئے، اور ہم ادھر 5 بندے تھے، اور ادھر آ کے ہمارے وہ جو بندے تھے اس نے کہا آپ نے ادھر کچن کے اندر یہ نہیں لگائے، اس کو 3000 روپے اس نے جرمانہ کیا، اور وہاں اس کو جلسے جلوسوں میں لوگوں کو مہمان نوازی میں ہزاروں لوگ نظر نہیں آتے۔ اب گورنمنٹ سے یہ درخواست ہے، اس کے اندر بھی لوگ کاروبار کر رہے۔ اب جن کے پیارے مر جاتے اس نے اپنے گاؤں جانے، کیا انہوں نے عرضیل علیہ السلام کو بھی
वो छुट्टी दे दिया कि भाई ना करो। अब ये बेइज्जती है, इसको एक तरीका कार बनाना चाहिए कि भाई दुकान बजाय बंद करने का ये डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर में लोग कौन मशवरे देते हैं 24 घंटे खोला रखो। हम आपकी तरफ आते हैं, हम इसी क्वेश्चन को लेके आते हैं कि अगर उन्होंने 3000 जुर्माना किया है अंजुम गुज्जर साहब, क्योंकि आप जो है एम्प्लॉई यूनियन को देख रहे हैं और स्पेशली आप जो है वो लेबर्स और यूनियंस जो साथ लेके चल रही हैं, तो अगर उन्होंने 3000 जुर्माना किया है, वो एक लेबर का या एक मजदूर का उसका 3000 जुर्माना हो रहा है, तो आए दिन जो ये इलेक्शन हो रहे हैं या जहाँ पे गहमा-गहमी है, हजूम है, वहाँ तो ये इनको नहीं नज़र आ रहा, वो क्यों, क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार साहब बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में हमें बुलाया और कोविड-19 और लेबर डे 1 मई के हवाले से इसको आपने कंपेयर करना चाहा, बहुत अच्छी बात है। सर आपने जो बात की है, जो इज़्ज़त लाला ने बात की है, 3000 रुपये एक मजदूर को जुर्माना हुआ है। आप हैरानगी की बात देखें, जब पहले मैंने आपको कहा है कि 17,000 तनख्वाह है मजदूर की, 17,000 भी नहीं दे रहे, हुकूमती जो आर्डर है 17,000 है। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनमें मजदूर की तनख्वाह 12 से 13,000 है। अगर 12 से 13,000 में से वो 3,000 जुर्माना दे देगा तो मुझे बताएं, ऊपर से आपने कोविड-19, ये जरूरी नहीं कि सरकारी मुलाजिम की मैं बात कर रहा हूँ, जो मजदूर आम मजदूर है, बाहर काम कर रहा है, जिसको 500 दिहाड़ी लेता है या 600 लेता है, वो अगर 1 वीक में 2 दिन कोरोना की वजह से, लॉकडाउन होने की वजह से घर में बैठ गया और उसको कहीं पब्लिक प्लेस में जाते हुए 3,000 रुपये जुर्माना हो गया, उसके लिए तो क़यामत सुग़रा है। वो अपने बच्चों का चूल्हा कैसे जलाएगा? सर ये चीज़ तो एक और समझ नहीं आ रही कि ये फ्राइडे सैटरडे 2 दिन ऑफ किया गया और मजदूर को तो यही 2 दिन छुट्टी दे दी गई है, वो उन 2 दिन के लिए जो है उन्होंने बाकायदा तौर पे ट्रांसपोर्ट भी बंद कर दी है। दैट्स पॉइंट सर। सिमाक साहब, बड़ी हैरानगी की बात है, कोरोना बड़ा सियाना है, जो हफ्ते के 4 दिन तो पूरा पीक पे होता है, 4 दिन पीक पे होता है, फिर ये कहते हैं नहीं 2 दिन पीक पे होता है। ये इनकी अपनी मर्जी है, कभी 4 दिन करते हैं, कभी 2 दिन करते हैं। जब वो 2 दिन कहते हैं, सैटरडे संडे को कोरोना बहुत पीक पे होता है, उस दिन ट्रैफिक भी बंद है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद है। जब एक मजदूर इस्लामाबाद आया हुआ कराची से, वो मजदूरी कर रहा है, जो मजदूरी कर रहा है उसने अपने घर जाना है, बीवी बच्चों के पास जाना है, हफ्ते के आखिरी दिन जब छुट्टी होती है तो उस दिन तो इन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दी। मेरा सवाल ये है कि 12,000 तनख्वाह लेने वाला 3,000 जुर्माना भी एक हफ्ते में दे दे और उसके बाद हफ्ते को उसने अपने बीवी बच्चों के पास जाना है, तो वो जब ट्रांसपोर्ट बंद है तो वो कैसे जाएगा? अंडरस्टूड है कि वो अपनी कोई कार्गो का इंतजाम करेगा, स्पेशल गाड़ी का इंतजाम करेगा, वो कैसे करेगा? मैं आपको बताऊं सिमाब साहब, इस कोरोना की वजह से खुदा की कसम इतने लोग मर रहे हैं, कुछ टेंशन से मर रहे हैं, कुछ भूख से मर रहे हैं, भूख से मरे हैं। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। नदीम साहब, आप माशाल्लाह से बहुत एक सीनियर सहाफ़ी हैं, आप बताएं कि ये सहाफ़ी जो है वो क्यों नहीं इसको वजाहत करे? सहाफ़ी तो आपको पता है कि उसको तो काफ़ी सारी चीज़ें बहुत मालूमात होती है, लेकिन ये क्या बात है, मीडिया हमारा कुछ कभी तो बिल्कुल सो जाता है, किसी चीज़ को सामने नहीं ले आता, अचानक से पता चलता है, यकदम सारा कुछ आ रहा है। क्या ये गवर्नमेंट की और मीडिया की मिली हुई पॉलिसी है? देखिए इफ्तिखार साहब, इस तरह है कि हमारे बहुत सारे मीडिया के दोस्त खुद मुतासिर हुए हैं कोरोना वायरस की वजह से, तो इस वजह से यही कहेंगे कि अल्लाह की हुकूमत ने जिस तरह मीडिया फ्रंट फुट पे आके कवरेज करता है, उसके लिए जो लवाजमात है वो होने चाहिए, लेकिन नहीं है इत्तेफाक से। अच्छा, इसके लिए माजर के साथ यहीं पे कि क्या साफियों के लिए भी कोई इकदाम किया गया? जैसे कि फर्स्ट लहर में जो है बाकायदा तौर पे हमने देखा था, आशिक अवान साहबा खुद आई थी, चौहान साहब आए थे, उन्होंने आके कोई किट्स वगैरह दी, और ये क्या वो सारा उस वक्त फर्स्ट लहर में था? अब जब ज़्यादा हुआ तो वो सारे पीछे हट गए हैं। बिल्कुल, अभी गवर्नमेंट जो है साफियों के लिए इकदाम कर रही है, उनको फेवर दे रही है हर लिहाज से, तो ये कहना नहीं कि कोविड-19 मौजूद है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। कोविड-19 की वजह से ही ये सारे देखें ना आपके सामने हैं, लोग रोज़ मर रहे हैं, तो कुछ न कुछ तो है, इसको आप ये नहीं कह सकते कि नहीं है। सर मैं इनकी कथा कलामी की माफ़ी चाहता हूँ सर, मैं जो कोरोना की बात कर रहे हैं आप, मीडिया की बात कर रहे हैं, मीडिया भी दिखाता है वो है जो वो दिखाना चाहता है, जो उनको गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन मिलती हैं। सर यहाँ पे ये अतवार बाजार जो लगते हैं, मैं खुद बाजार में गया हूँ, अबारा बाजार में गया हूँ, अतवारा बाजार में किसी SOPs का ख्याल नहीं था, किसी बंदे ने मास्क नहीं पहना होता, किसी बंदे ने पूछा नहीं है। दूसरा, जो गवर्नमेंट ने वहाँ यूटिलिटी स्टोर खोला हुआ है, उसमें लाइन लगी हुई है, लाइन में कोई स्पेस नहीं है, वहाँ लाइन में लग के लोग अपने जो ले रहे हैं ज़रूरियाती अशिया, यकीन माने सर जो कोरोना नहीं पहन रहा। मेरे भाई बात कर रहे हैं, जो असल सवाल है मेरा जहन में है, वो आपका सवाल ये होना चाहिए और मैं ही करता हूँ।
मुझे ये समझ नहीं आते कि इस यूपी के लिए अक्सर बरा इनके किधर गया वो जो डॉक्टर था फैसल सुल्तान साहब, या कोई इस तरह नाम गरामी कोई शख्स आ जाए जिस पर हम यकीन कर ले। मैं तो ये हमारा जो वजीर है असद उमर जिसका नाम है, मैं उसको कहता हूँ नाकाम उमर, नाकाम उमर है वो, असद उमर नहीं है। इसलिए वजीर खजाना उसने इमरान खान को और हम पूरा कौम को बोला कि अगर मैं आऊंगा महंगाई खत्म हो जाएगा, मैं दरख्तों से बिजली बनाऊंगा, हवा से बनाऊंगा। वजीर खजाना भी नाकाम हो गया। उसके बाद आप एक चीज बताएं, आप उसके बाद सर मेरा बात पूरा जुमला पूरा सुनने, उसमें वजीर खजाना भी नाकाम हो गया। उसके बाद मनसूबंदी वजीर बन गया, मनसूबंदी बनो, मुझे जानते अल्लाह करे मेरा तकरीर सुने, मनसूबंदी बन भी वो नाकाम हो गया। गलत मनसूबाबंदी, उसको जहां जरूरत नहीं है वहां उसने पैसे खर्च कर दिया। ठीक है, क्या जरूरत है, ये 2 सड़क न बने ना, 2 हम जो भी गवर्नमेंट आते हम जनाब वहां टूरिस्टों के लिए बनाएंगे, पहाड़ में सुराख करेंगे, बाहर के टूरिस्ट आएगा, भाई मैं इधर भूख से मर रहा हूं। अभी उन्होंने जनाब इसके लिए कोरोना के वजीर बना दी। अब वो रोज टीवी पर वो आते हैं, असद उमर के कहने पर कौन यकीन करते हैं। मेरा हुकूमत वक्त से दरखास्त है, मैं खुद हुकूमत पार्टी से हूँ, मैंने घर से 36 सूट दिया और जब तक मेरा जिंदगी है इमरान खान जिंदाबाद। लेकिन उसूल है यहाँ, इसके लिए फैसल सुल्तान जैसे एक नामी गरामी डॉक्टर को होना चाहिए ताकि लोगों को इसके बता दे। अच्छा, टाइम शॉर्ट होने की वजह से जरा मैं ये चाहूँगा कि ये बताएं, ये जो रमज़ान के महीने में ताजिरों ने बहुत कुछ इस पे सोच के रखा होता है कि इन चीज़ें उठा के रखी होती हैं कि रमज़ान में हमने जाके ये सीज़न लगाना है, उधार लेके जेवर बेच के पता नहीं कैसे कैसे तरीक़ों से उन्होंने पैसे इकट्ठे किए होते हैं। आप अचानक से जा रहे हैं 3 मई को जो है वो हम लॉकडाउन लगा रहे हैं। सर जी बिल्कुल गलत है। इसलिए इस मुल्क के मजदूर और छोटे दुकानदार ये मुल्क चला रहे, क्योंकि न तो छोटे दुकानदार के पास ज़ख़ीरा-अंदोज़ी का बंदोबस्त है। वो जो 4000 बोरी जिसके साथ पकड़ा गया, गवर्नमेंट को चाहिए जिंदगी भर उसका लाइसेंस कैंसिल कर दे। जिस बंदे के साथ इन गरीबों ने इसके ऊपर ये सख्ती जरूर कर ले कि भाई आप गाहक को दूर दूर रखे, इस यूपी पे यकीन करें, वहां पे आप जनाब उधर मास्क खुद अपना रखे, अगर किसी पर नहीं वो उसको दे दे, दस्ताने डाले, आप अपना जो है ना वो वजूद को डाम पे उनको भी कर दे, लेकिन आप आराम से, और ये बंद करना कोई मसले का नहीं। जो टाइम जो दिया गया 6 बजे तक का, ये गलत है। अब हर बंदे को जलती है, क्योंकि यहां पर एक दफा ऐलान करो प्लान चीज की शार्टेज हो गया, लोग हफ्ते हफ्ते का जमा करते, तो फिर उसके वजह से जनाब हुजूम बनते। और फिर यहां पर जनाब गवर्नमेंट का ये भी तो देखना है, मैं बार बार उधर आता हूं, चेन्नई इनके पास स्टोर में बस ये कहते हैं यूटिलिटी स्टोर को पैसे दे दिया, पता नहीं वो दिया भी कि नहीं दिया। यूटिलिटी स्टोर पे जाओ, वहां हजारों के लाइन खड़ा होते हैं, इनकी ऊट के लिए भी लाइन में खड़ा हो जाओ, फिर इन चीनी के लिए भी लाइन में खड़े हो जाओ, फिर आटे के लिए लाइन में भी खड़ा हो जाओ। हम तो इनके मार्केट है, हमको तो गवर्नमेंट अपोजिशन गवर्नमेंट तो चलते ही गरीब के सर पर है। जी हाज़रीन, प्रोग्राम का टाइम शॉर्ट होने की वजह से इंतहाई एक अच्छी गुफ्तगू हो रही थी, और कोविड-19 है या नहीं, लेकिन हमें अपनी हिफाजत करनी होगी, ख़ुद को बचाना होगा, और हमारी हुकूमत से दरख्वास्त होगी, जैसा कि इज़्ज़त खान लाला साहब ने और अंजम शहजाद गुज्जर साहब ने, नदीम गुलजार खोखर साहब ने इसी बात पे जोर दिया है, टाइम को बढ़ा दें, लॉकडाउन इसका हल नहीं है, SOPs पे अमल करें। खुदारा हमारी आवाम से भी यही दरख्वास्त है, SOPs पे अमल करें, क्योंकि आप सेफ रहें अपने लिए, अपने प्यारों के लिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।